Hello students, welcome to the another lecture of advanced surveying in which we are going to learn the theodolite surveying. This is our first lecture of theodolite surveying. First, let's have a brief glance on the syllabus of MSBT. Unit 2 theodolite surveying, in which in second column there is the content of the syllabus. Type and use of theodolite, component parts of transit theodolite and their function, reading the vernier of transit theodolite. Second one, technical terms related to theodolite like swinging, transiting, face left, face right, etc. Next, fundamental axis of transit theodolite and their relationship. Next, temporary adjustment of theodolite. Next, measurement of horizontal angle and measurement of horizontal angle, direct and repetition method. There are two methods of measuring horizontal angle. First one direct method and second repetition method. Error eliminated by the methods of repetition. Next, measurement of magnetic bearing of a line, prolonging and ranging a line, deflection angle. Next, measurement of vertical angle, theodolite traversing by included angle method and deflection angle method. Theodolite traversing by included angle method and deflection angle method. There are two methods of theodolite traversing. First, included angle method and second one deflection angle method. Next, check for open and closed traverse, calculation of bearing and angles. Next, traverse computation, latitude, departure, consecutive consecutive coordinates, independent coordinates, balancing the traverse by Bowditch rule and the transit rule and Gale's table competition. These are the whole syllabus of our chapter theodolite surveying. Let's start with some introduction. So far, we have been measuring the horizontal angle by using compass with respect to a meridian, which is less accurate, and also it is not the possible to measure vertical angle with the compass. हमने बेसिक सर्वे के अंदर कंपास का प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ देखा है हमने। हम प्रिज्मेटिक कंपास की हेल्प से एंगल मेज़र करते थे। मोर एक्यूरेटली अगर कहा जाए तो हम मेरिडियंस मेज़र करते थे। एंगल विथ रेफरेंस टू नॉर्थ लाइन हम मेज़र करते थे। डायरेक्टली एंगल भी हम कंपास से मेज़र नहीं करते थे। हम लोग जो है तो बाय यूजिंग कंपास वी हैव यूज्ड वी हैव मेजर्ड द मेरिडियंस। और साथ ही साथ हमने देखा है कि प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स भी आते हैं। लोकल अट्रैक्शन वाला एरर देखा है हमने। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस उसके पास अगर होता है, प्रिज्मेटिक कंपास के पास होता है, तो उसके अंदर एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक सर्वे के अंदर देखी है। So when the objects are at considerable distance or situated at a considerable elevation or depression, it becomes necessary to measure the horizontal and vertical angles more precisely. So these measurements are taken by an instrument known as theodolite. कंपास का डिसएडवांटेज ये भी है कि कंपास से हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस मेज़र करते थे, हॉरिजॉन्टल एंगल भी नहीं, सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन मेज़र कर सकते थे। हम कंपास से वर्टिकल एंगल मेज़र नहीं कर सकते हैं। अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट का प्रिसाइजली मीन्स एक्यूरेटली अगर हॉरिजॉन्टल एंगल एज वेल एज वर्टिकल एंगल, अगर वो ऑब्जेक्ट प्लेन ग्राउंड लेवल पे नहीं है, कुछ हाइट के ऊपर है, कुछ एलिवेशन के ऊपर है, या मे बी कुछ डिप्रेशन के ऊपर है, तो हमको उसका वर्टिकल एंगल भी प्रिसाइजली मेज़र करना है। और वो हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल प्रिसाइजली मेज़र करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है theodolite. Theodolite surveying, the system of surveying in which angles are measured with the help of theodolite is called as theodolite surveying. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेसिक सर्वे के फर्स्ट लेक्चर के अंदर सर्वे का क्लासिफिकेशन यूज़ किया देखा था। तो उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट।
अब हम जैसा कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो सर्वेइंग को वो इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम सर्वे करने के लिए चेन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नाम पड़ गया चेन सर्वेइंग। हम सर्वेइंग करने के लिए प्रिज्मेटिक कंपास यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वेइंग का नाम पड़ गया प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग। अब हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए थेडोलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका नाम पड़ गया है थेडोलाइट सर्वेइंग। द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच the angles are measured with the help of theodolite is called as theodolite surveying. अब हमको यहाँ पर ये सर्वे के अंदर ये चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें सारा सर्वेइंग हमको विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट करना है। थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके सारी चीज़ें हमको देखना है, तो इसलिए हमको ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम थेडोलाइट के क्लासिफिकेशन देख ले। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ थेडोलाइट, देर आर द मेनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थेडोलाइट। फर्स्ट बेस, based on the horizontal axis, horizontal x based on the rotation along the horizontal axis ऐसा होना चाहिए था वो। एक होता है ट्रांजिट थेडोलाइट और दूसरा होता है नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। ट्रांजिट थेडोलाइट के अंदर कैसा होता है, आपने जो है तुम फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आपने एक इमेज देखी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इमेज को थोड़ा गौर से देखिए, वो हमारा थेडोलाइट है। आपको इसके अंदर ये यहाँ नीचे भी यहाँ पर आपको बॉटम के अंदर भी एक थेडोलाइट की छोटी सी इमेज दिख रही है यहाँ पर। जी यहाँ पर जो आपको एक टेलीस्कोप के जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा होगा। हमने डंपी लेवल ऑटो लेवल देखा है, उसके अंदर भी टेलीस्कोप होती है, बट डंपी लेवल एंड ऑटो लेवल इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको एक टेलीस्कोप भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर वो टेलीस्कोप को हम पूरा 360 डिग्री में रोटेट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है ट्रांजिट थेडोलाइट। और अगर हम वो टेलीस्कोप को 360 डिग्री में रोटेट नहीं कर पाते हैं तो वो हो जाता है थेडोलाइट नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। बेस्ड ऑन द एंगल, बेस्ड ऑन द एंगल मेजरमेंट, और बेस्ड ऑन द स्केल भी हम बोल सकते हैं। वर्नियर थेडोलाइट और दूसरा माइक्रोमीटर थेडोलाइट। थर्ड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थेडोलाइट। वर्नियर थेडोलाइट के अंदर वर्नियर स्केल गिवन होंगी, एक मेन स्केल होंगी और उसके साथ अटैच वर्नियर स्केल होंगी। ऐसे थेडोलाइट को हम बोलेंगे वर्नियर वर्नियर थेडोलाइट। माइक्रोमीटर थेडोलाइट के अंदर एक मेन स्केल होंगी और साइड में माइक्रोमीटर स्केल गिवन होंगी। ऐसे थेडोलाइट को बोलेंगे हम माइक्रोमीटर थेडोलाइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल थेडोलाइट ऐसे थेडोलाइट से हमारे जो कि डायरेक्टली हमको जो है तो एंगल इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली मेजर कर कर दे देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ थेडोलाइट थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। ट्रांजिट थेडोलाइट, a theodolite is called as transit theodolite when its telescope can be transited, that is revolved through a complete revolution about its horizontal axis in vertical plane। हम्म जैसा मैंने अभी लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम थेडोलाइट की टेलीस्कोप को पूरा कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व कर पाते हैं अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। अगर हम कोई चीज़ को हॉरिजॉन्टल एक्सिस घुमाएंगे तो इसका मतलब है कि उसको हम वर्टिकल प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको अगर कोई थेडोलाइट की टेलीस्कोप को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर पाते हैं थ्रो कंप्लीट रिवॉल्यूशन और थ्रो 360 डिग्री, ऐसे थेडोलाइट को हम बोलते हैं ट्रांजिट थेडोलाइट। उसका अपोजिट में क्या होगा, नॉन ट्रांजिट में क्या होगा, जो थेडोलाइट को हम 360 डिग्री से या कंप्लीट रिवॉल्यूशन से रोटेट नहीं कर पाते हैं ऐसे थेडोलाइट को हम बोलेंगे नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। वर्नियर थेडोलाइट, for reading the graduated circle, if verniers are used, the theodolite is called as vernier theodolite। वर्नियर थेडोलाइट के अंदर हमको मेन स्केल के साथ एक वर्नियर स्केल भी प्रोवाइड की होंगी, ऐसे थेडोलाइट को हम बोलते हैं वर्नियर थेडोलाइट। हम ये सारी चीज़ें एक एक डिटेल में देखने वाले हैं। जस्ट आप लोग यहाँ पर थोड़ा थेरोटिकल कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए। बाद में हम सारी वर्नियर स्केल कैसी होती है, माइक्रोमीटर स्केल कैसी होती है, उसकी इमेजेस भी हम देखने वाले हैं जब ये टॉपिक चलेगा। Whereas if a micrometer is provided to read the graduated circle, the same is called as micrometer theodolite। अगर वर्नियर स्केल की जगह पर अगर माइक्रोमीटर स्केल अगर फिट की होती है यहाँ पर तो हम उसको बोलेंगे माइक्रोमीटर थियोडोलाइट। रीडिंग्स directly provided as digital number if
electronic distance measuring is attached with it, then it is called as total station. अगर हमारे पास डिजिटल थेडोलाइट है या उसको ही हम क्या कर सकते हैं, उसको ही हम टोटल स्टेशन भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस है थेडोलाइट, डिजिटल थेडोलाइट और टोटल स्टेशन के अंदर। अगर हम डिजिटल थेडोलाइट के साथ ईडीएम प्रोवाइड करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं टोटल स्टेशन। और ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमको डायरेक्टली जो है तो मेजरमेंट करके डायरेक्टली एंगल दे देता है। यहाँ पर हमको कोई कैलकुलेशन करने की या रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारा थेडोलाइट रोटेट होते जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली उसकी रीडिंग्स इंक्रीज होते जाती है। Sizes of theodolite. A theodolite is designated by diameter of graduated circle on lower plate. लोअर प्लेट अभी तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट अगर आप यहाँ पर इमेज में नीचे साइड में एक छोटी सी जो इमेज है वहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि वर्टिकल हमारे माइक टेलीस्कोप के साइड में एक वाइट कलर की एक रिंग दिख रही है हमको, वो है वर्टिकल सर्कल। और टेलीस्कोप जिस जो फ्रेम को अटैच्ड है और वो फ्रेम नीचे जो प्लेट को अटैच्ड है उसको बोलते हैं हम लोअर प्लेट। ठीक है, इसकी भी हम वापस से डिटेल में सारी चीज़ें इसकी इमेज के साथ हम देखने वाले हैं। जस्ट आप हॉरिजॉन्टल सर्कल जो रहती है, हमारे पास दो सर्कुलर प्लेट हम देखने वाले हैं यहाँ पर थेडोलाइट के अंदर, एक वर्टिकल सर्कल और दूसरा जो है तो हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर भी दो प्लेट्स होते हैं, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। तो लोअर प्लेट के डायमीटर के ऊपर से हम थेडोलाइट का साइज डिसाइड करते हैं। The common sizes are 8 centimeter to 12 centimeter, while 14 centimeter to 25 centimeter instruments are used for triangulation work. Means यहाँ पर 8 to 12 as well as 14 to 25 सेंटीमीटर के बीच में हमारे थेडोलाइट अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा हमको एक्यूरेसी की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा डायमीटर वाला हमको थेडोलाइट लेना पड़ेगा। Greater accuracy is achieved with larger theodolite as they have bigger graduation circle with larger divisions, hence used where the survey works required high degree of accuracy. Yes, हमको जितनी ज़्यादा accuracy चाहिए, हमको उतने ज़्यादा डायमीटर का थेडोलाइट हमको यूज़ करना पड़ेगा। यूजेस ऑफ थेडोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सर्वेइंग, बेसिकली सर्वेइंग के जितने भी बेसिक प्रोसेसेस है, सारे प्रोसेस हम थेडोलाइट से कवर कर सकते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट। थेडोलाइट को अगर अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है कि विच इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट, तो हम बोल सकते हैं थेडोलाइट इज यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट। व्हाई? बिकॉज वी कैन डू ऑल द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ सर्वेइंग विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट। देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर थेडोलाइट यूज करके। मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन द लाइन, प्रोलॉन्गिंग अ सर्वे लाइन। प्रोलॉन्गिंग मीन्स अगर कोई हमारे पास एक सर्वे लाइन है और वो सर्वे लाइन को हमको आगे एक्सटेंड करना है, उसको बोलते हैं हम प्रोलॉन्गिंग। ये एक आपने सिलेबस में देखा होगा कि प्रोलॉन्गिंग एक कंसेप्ट है, हमको उसको स्टडी करना है। अभी इतना माइंड में रखिए, प्रोलॉन्गिंग मीन्स कोई भी अगर हमारे पास सर्वे लाइन है और वो सर्वे लाइन को अगर एक्सटेंड हमको करना है, तो वो हम उसको बोलते हैं प्रोलॉन्गिंग। फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ लेवल, यहाँ पर हम उससे थेडोलाइट से हम ऑटो लेवल का काम भी ले सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ऑटो लेवल और डंपी लेवल का क्या काम है, हमारे डिफरेंट पॉइंट के लेवल डिफरेंस हमको फाइंड करके मिलते हैं ऑटो लेवल एंड डंपी लेवल से। सेम काम हम थेडोलाइट से भी ले सकते हैं। सेटिंग आउट द ग्रेड्स, ग्रेड मीन्स स्लोप। अगर हमको स्लोप सेट करना है तो हमारे पास हम वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं इसके अंदर, तो हम स्लोप को वर्टिकल एंगल में कन्वर्ट करके हम ग्रेड्स भी सेट कर सकते हैं। रेंजिंग द कर्व, टेकोमेट्री, ये जो है तो यूजेस ऑफ थेडोलाइट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस ऑफ थेडोलाइट। ये इमेज को थोड़ा सा गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है यहाँ पर। अब तक जो है तो जितने भी मैंने कंसेप्ट बोला हूँ, आप
मेरा तो आपको रिक्वेस्ट रहेंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाली इमेज को थोड़ा गौर से देखिए, उसके बाद वापस से एक बार फिर से पूरा लेक्चर देखिए, तो बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए सेंटर के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप के सेंटर से जो लाइन, अगर टेलीस्कोप को हम परफेक्टली वर्टिकल करते हैं, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट ग्लास जो है तो स्काई की तरफ, और जो है तो आई पीस हमारे ग्राउंड की तरफ अगर करते हैं, परफेक्टली वर्टिकल करते हैं, तो जो एक्सिस उसके सेंटर से पास होती है उसको बोलेंगे हम वर्टिकल एक्सिस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव जो बताया है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप, डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिख रहा है अल्टीट्यूड बबल। यहाँ पर एक स्प्रिट लेवल के जैसा एक बबल ट्यूब होता है, वहाँ उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड बबल। दो टाइप के बबल है यहाँ पर, एक अल्टीट्यूड बबल और दूसरा जो है तो यहाँ पर एक लेवलिंग बबल यहाँ पर एक गिवन है। दो टाइप के हमको बबल प्रोवाइड किए होते हैं यहाँ पर, अल्टीट्यूड बबल और दूसरा लेवलिंग बबल। वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेलीस्कोप के राइट साइड में वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू है। यहाँ पर वर्टिकल सर्कल लेफ्ट साइड में, टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में जो है तो वर्टिकल सर्कल है। आई पीस, टेलीस्कोप का जो पोर्शन है जहाँ से हम लोग देखने वाले हैं उसको बोलते हैं आई पीस। प्लेट लेवल, यहाँ पर नीचे प्लेट्स होती हैं, उसको लेवल करने के लिए यहाँ पर प्लेट लेवल है। एक अल्टीट्यूड बबल और दूसरा जो है तो प्लेट लेवल यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट अपर प्लेट, अपर प्लेट लोअर प्लेट अभी हमने देखा था। साइज किसके ऊपर, थेरोलाइट की साइज किसके ऊपर डिपेंड है, लोअर प्लेट के डायमीटर के ऊपर। तब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के प्लेट, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेट और दूसरा वर्टिकल प्लेट। वर्टिकल प्लेट आपने यहाँ पर देखा, टेलीस्कोप के लेफ्ट साइड में वर्टिकल प्लेट है और ये बॉटम साइड में जो है तो हॉरिजॉन्टल प्लेट है। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के अंदर भी दो प्लेट है, लोअर अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। इनर स्पिंडल, बीच में जो कोन, दोनों प्लेट के बीच में एक कोन शेप में जो है तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम इनर स्पिंडल। और दूसरा है तो आउटर स्पिंडल। इनर स्पिंडल अटैच्ड है अपर प्लेट से और आउटर स्पिंडल अटैच्ड है हमारे लोअर प्लेट से। ये स्पिंडल कुछ और नहीं बट जस्ट हमारे कोन शेप में जो है तो कोन शेप में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ये प्लेट्स को सपोर्ट कर रहा है। ट्राइब्राच, ट्राइब्राच जिसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, हमारा टेलीस्कोप और सारे स्क्रूज वगैरह टिके हुए, उसको बोलते हैं ट्राइब्राच। नेक्स्ट है लेवलिंग स्क्रूज, तीन स्क्रूज होते हैं, अभी हम इमेज के अंदर सिर्फ दो ही स्क्रू देख पा रहे हैं। तो तीन स्क्रूज होते हैं। लेवलिंग स्क्रू ऊपर नीचे करने से हम लेवल जो है तो चेंज होती है, लेवलिंग करने के लिए हम लेवलिंग स्क्रूज यूज करते हैं। नेक्स्ट ट्राइवेट, एक स्टील का बना हुआ कुछ यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ट्राइवेट। जो लेवलिंग स्क्रू का अपर पार्ट जो है तो हमारे ट्राई ब्रांच के अंदर होता है, और लेवलिंग स्क्रू का बॉटम पार्ट, जो कि लेवलिंग स्क्रू का बॉटम को हमने बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट से ट्राइवेट के अंदर फिक्स किया होता है, मीन्स हम उसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्राइपॉड हेड, ट्राइपॉड का हेड रहेगा यहाँ पर, ये हमारे ट्राइपॉड थेडोलाइट का पार्ट नहीं है बट जस्ट हमको ये ट्राइपॉड का पार्ट है। ट्राइपॉड हेड के ऊपर जो है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बैठा हुआ है, और ये ट्राइपॉड लेग। ठीक है। और ये तीनों जो कंपोनेंट है, ट्राइब्राच, लेवलिंग स्क्रू और ट्राइवेट, ये तीनों को मिलकर बनता है लेवलिंग हेड। ट्राइब्राच, लेवलिंग स्क्रूज एंड ट्राइवेट। ट्राइब्राच जो है तो ऊपर की प्लेट होती है, बीच में जो है तो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं और बॉटम के अंदर ट्राइवेट। ये तीनों को मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं लेवलिंग हेड। ठीक है। इस तरह से हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा है ट्रांजिट थेडोलाइट का, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके जो है तो मार्क्स भी ज़्यादा है आपके सिलेबस वेटेज के हिसाब से, और फील्ड वर्क के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी हमने आज इसको स्टार्ट किया है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ डिटेल में देखते जाएंगे। आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट मैक्सिमम हमारे सब्जेक्ट का पोर्शन प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है, बट हम अभी प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट हम इमेजेस से और स्लाइड से वर्चुअली स्टडी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जितना हो सकता आप लोग प्रैक्टिकल इसके वीडियोस देखें,
फॉर एग्जांपल कोई वीडियो उसके अंदर थेडोलाइट का प्रैक्टिकल करके कोई बता रहा है, तो ऐसा वीडियो आप देखिए, तो आपके भी कंसेप्ट जल्दी क्लियर होंगे और आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ओके, बाय।